the YouTube channel of Law Putra. I am Pratima Divakar, and today in this video we will be covering a very sensitive topic, and that is rape. Rape term के बारे में हम अच्छे से जानते हैं. It is very sad to say, but we can hear about the news of rape cases happening throughout the country almost every day. But in this video today, we'll be discussing what are the technicalities according to the Indian legal system that constitute a rape and what are the punishments prescribed according to the IPC. So, चैप्टर 16 ऑफ आईपीसी जो है वो सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करता है. चैप्टर 16 में सेक्शन 375 से लेकर सेक्शन 377 तक ऑफेंसेस हैं. सेक्शन 377 जो है वो अननेचुरल ऑफेंसेस की बात करता है, विच इज अ वेरी बिग टॉपिक इन इटसेल्फ. So we'll be discussing it in any other video. Today we'll be discussing about rape की definition and the punishment, which are provided in section 375 and 376 and the subsidiary section. So अभी जो हम रेप की definition पढ़ते हैं, 2005 से पहले ये सेम डेफिनेशन नहीं थी. 2005 से पहले सिर्फ पीनल और वेजाइनल इन पेनिट्रेशन को ही रेप माना जाता था. बट आफ्टर अ केस वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2004, ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया स्टैट्यूट के अंदर, जिसके बाद रेप की डेफिनेशन को ब्रॉडर और एक्सप्लेनेटरी कर दिया गया. तो सेक्शन 375 के अकॉर्डिंग जो 4 एक्ट हैं जो कि रेप को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो है सेक्शन 375 ए, बी, सी एंड डी. जब ये चारों एक्ट में से कोई एक्ट कमिट होगा तभी माना जाएगा कि रेप कमिट हुआ है. तो सेक्शन 375 ए ये बोलता है that when a man penetrates his penis to any extent into the vagina, urethra, mouth or anus of a woman, or makes her to do so with him or any other person. Section 375B ये बोलता है that when a male inserts to any extent any other object other than penis into the vagina, urethra or anus of a woman, or makes her to do so with him or any other person. Section 375C ये बोलता है that when a man manipulates any part of the body of a woman so as to create penetration, so as to cause penetration into the vagina, urethra or anus or any other part, body part of the woman, or make the women to do so with him or any other person. और चौथा एक्ट 375D ये बोलता है that when a male applies his mouth to the vagina, anus or urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person. तो ये 4 एक्ट अपनी लैंग्वेज से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं. अब वो 7 कंडीशंस क्या हैं, 7 सर्कमस्टांसेस क्या हैं जिनसे ये सब्जेक्टेड हैं, तो वो हम देख लेते हैं. तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है दैट इट शुड बी अगेंस्ट हर विल. सेकंड कंडीशन ये बोलती है दैट इट शुड बी विदाउट हर कंसेंट. थर्ड कंडीशन ये बोलती है कि शी माइट हैव गिवन हर कंसेंट बट द कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फोर्सिबली by applying pressure on her. For example, you are threatening her that if she do not commit such act, then she will be, you are pointing a gun on her head and you are forcing her to do that act on the gun point, or you are forcing her, you are pressurizing her by threatening the life of any other person she is related to, then also it won't be counted as free consent and hence it will be counted as rape. फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन ये है that if she has given her consent but the consent has been obtained falsely. For example, you are pretending to be someone she would give consent to but you are not. For example, पहले के जमाने में जब अर्ली मैरिजेस हो जाती थी and women were didn't even recognize who their husbands were. तो उस टाइम पर if any person who pretends to be their husband and have sexual intercourse with her,
by obtaining that false consent, then that will also be counted as rape. अब fifth condition क्या है? Fifth condition is that she has given the consent, but the consent is under any undue influence. For example, she doesn't know the nature and consequences of her consent. For example, she is intoxicated with alcohol. She is in her right state of mind, or she is unsounded with mind at the time of giving consent. Sixth condition क्या है? Sixth condition बोलती है that even the consensual penetration or consensual sex below the age of 18 years will be counted as rape. For example, if a girl who is 18 years or below the age of 18 years uh, have voluntary sexual intercourse with a man, so afterwards, if she desire to file a report that she has been raped, then it will not be inquired whether she has given her consent or not, क्योंकि 18 years से below की एज की गर्ल की कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाता है. सेवेंथ और लास्ट कंडीशन ये है कि वो अनेबल है अपनी कंसेंट कम्युनिकेट करने में. फॉर एग्जाम्पल सरल भाषा में बोले तो उसकी चुप्पी को उसकी हाँ नहीं माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल she cannot speak, or she is in a state of mind where she cannot show resistance. तो उस टाइम पर ये अज्यूम नहीं किया जाएगा that she is giving her consent. अब सेक्शन 375 में दो एक्सेप्शन भी है साथ ही साथ. फर्स्ट एक्सेप्शन इज कि मेडिकल इंटरवेंशन या मेडिकल प्रोसीजर को रेप नहीं माना जाएगा, और दूसरा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वाइफ who is not below the age of 18 years without her consent will not be counted as rape. अब ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में कि हम मैरिटल रेप को प्रॉब्लम ही नहीं मानते हैं, मैरिटल रेप को एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं, विच नीड्स अमेंडमेंट. इनफैक्ट ये जो एज लिमिट है 18 इयर्स, ये भी पहले 15 इयर्स थी. इट was changed after a case law of Independent Thought versus Union of India. Now moving forward, there is another important case law, that is Deepak Gulati versus State of Haryana. इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ विमेन with a false promise to marry her in future will also be counted as rape. मतलब जो डिपेंडेंट था उसने जो प्लेंटिफ है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, and at that time before sexual intercourse he promised that he would marry her, but afterwards he denied, so that will also be counted as rape. Okay, so moving forward towards punishment for rape, तो सेक्शन 376 जो है वो पनिशमेंट से डील करता है. सेक्शन 376 में दो सब क्लॉजेस हैं बेसिकली. सेक्शन 376 1 से पहले हम 376 2 डिस्कस कर लेते हैं. 376 2 जो है उसमें सर्टेन स्पेशल सिचुएशन, स्पेशल सर्कमस्टांसेस प्रोवाइडेड है जिनमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो ज्यादा होता है, एंड दैट इज इम्प्रिजनमेंट that shall be rigorous and for a term which shall not be less than 10 years and can be extended up to life imprisonment. जहाँ पर life imprisonment का मतलब होगा imprisonment for the rest of the life of the offender. साथ ही साथ the offender is liable to pay a fine, जो कि फाइन जो है वो विक्टिम को जाएगा. अब ये स्पेशल सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस क्या है? दीज आर लाइक इफ अ पुलिस ऑफिसर कमिट्स अ ऑफेंस अंडर सेक्शन 375, जो 4 एक्ट हमने डिस्कस किए थे, उन 4 एक्ट में से कोई भी एक्ट कमिट करता है विद इन द प्रमाइसेस ऑफ द पुलिस स्टेशन with any women or any women who is subordinate to him or any women who is in the custody. तो वो पुलिस ऑफिसर के लिए ऐसा अगर कोई क्राइम कमिट करता है, या कोई पब्लिक सर्वेंट है जो क्राइम कमिट करता है विद इन दी premises of his office with any subordinate employee या किसी
विमेन के साथ जो कस्टडी में है, अ, या फिर कोई आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने डिप्लॉय किया हुआ है एक पर्टिकुलर एरिया में, और उस एरिया के प्रीमाइसेस में अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, या अपनी कस्टडी के अंदर कोई विमेन है उसके साथ ऑफेंस कमिट करता है, या कोई मेंबर है मैनेजमेंट का या स्टाफ का ऑफ द जेल या रिमांड होम, या जो चिल्ड्रन के लिए कस्टडी हाउसेस होते हैं, उनका अगर कोई स्टाफ मेंबर है या मैनेजमेंट का मेंबर है, वो किसी विमेन के साथ क्राइम कमिट करता है, या फिर कोई भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट का स्टाफ है, वो किसी हॉस्पिटल के अंदर ही किसी विमेन के साथ क्राइम कमिट करता है। मे बी वो जो विमेन है वो पेशेंट है या नर्स है या कोई भी ओकेजनल विजिटर। बाकी अदर केसेस जैसे कि कम्युनल वायलेंस या सेक्रेटेरियन वायलेंस के टाइम पर अगर कोई पर्सन रेप कमिट करता है, या कोई पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है उस चाइल्ड की, उस विमेन की, फॉर एग्जाम्पल टीचर या गार्जियन या रिलेटिव, अगर वो किसी मतलब वो ही इज इन पोजिशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी टू दैट विमेन, अगर वो उस विमेन के साथ क्राइम कमिट करता है, रेप कमिट करता है, या फिर कोई किसी प्रेग्नेंट विमेन के साथ रेप कमिट करता है, या फिर कोई भी गर्ल जो कि 16 इयर्स ऑफ एज से बिलो है उसके साथ रेप कमिट करता है, ऑल्दो ये जो गर्ल चाइल्ड है उसके साथ रेप के लिए पॉस्को एक्ट में भी सर्टेन प्रोविजंस हैं, which we won't discuss here. आईपीसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। फर्दर एनी crime is being committed, if any male commits a crime, means commits rape to a woman who is incapable of giving her consent, मतलब कि कोई women ऐसी पोजीशन में है कि वो कंसेंट नहीं दे सकती एंड उसका फायदा उठाते हुए द पर्सन कमिट्स रेप, और एनी कंडीशन जहाँ पर जो विमेन है उसके ऊपर उस मेल की डोमिनेंस है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस है उस मेल की, उस सिचुएशन में अगर कोई मेल जो है वो क्राइम कमिट करता है। फर्दर अगर कोई विमेन जो है वो मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी से पीड़ित है, उसके साथ अगर कोई रेप कमिट करता है, या फिर while committing the rape if the person leads to grievous bodily harm or permanent disfigurement of the women जिससे कि उसकी लाइफ थ्रेटन हो जाती है, तो उस केस में भी, और if also in the case when a person is convicted for the offense for more than once, मतलब कि वो पहले भी उस रेप के लिए कन्विक्ट हो चुका है एंड वो दोबारा से रिपीटेडली वो क्राइम कमिट करता है, तो भी देयर इज this rigorous imprisonment which shall not be less than 10 years and up to life imprisonment. 376 सबसेक्शन 1 जो है वो सिंपली ये बोलता है कि इन सिचुएशंस जो हमने अभी डिस्कस की, इनके अलावा अगर कोई मेल रेप कमिट करता है, then he shall be liable for an imprisonment which shall be rigorous and shall not be less than 7 years and can be extended up to life imprisonment. अब यहाँ certain provisions भी है जो कि important है, जैसे कि when a rape is being committed to a girl who is less than 15 years of age, तो उस तो जो offender है उसको rigorous imprisonment मिलेगा for a term which shall not be less than 20 years and or for life imprisonment, यानी कि उसकी जो remaining life time है उसके लिए, and he shall be liable to a fine जिससे कि उस जो child है उसके medical expenses वो bear कर सके। After the happening of various rape cases in the country, IPC में काफी सारे amendments किए गए हैं after section 376, जो कि है 376 के बाद 376A, 376AB, 376B, C, D, DA, DB, E, इन सेक्शंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया है थ्रू वेरियस अमेंडमेंट एक्ट। सो 376A क्या बोलता है? 376A टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ
और रिजल्टिंग इन persistent vegetative state of victim. यानी कि अगर कोई ऑफेंडर है वो रेप कमिट करता है and that rape leads to a persistent vegetative state of the victim. मतलब कि जो victim है उसकी state of mind ऐसी हो गई है that she is in a grave shock. वो external stimuli से react करना बंद कर देती है या उसको साइकोलॉजिकली वो एकदम डिस्टर्ब हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल वो कोमा में चली जाती है. तो ऐसा अगर कोई केस है तो उस केस में भी जो पनिशमेंट है वो मिनिमम 20 ईयर्स है. इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ ऑल्सो. तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस की गई है और साथ ही साथ जो मिनिमम लिमिट है वो 10 ईयर्स से 20 ईयर्स कर दी गई. और इसके साथ ही साथ जो कन्विक्ट है उसको फाइन भी देना होगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 376 ए बी क्या बोलता है? सेक्शन 376 ए बी बताता है अबाउट पनिशमेंट फॉर रेप ऑन अ वुमन हु इज अंडर 12 इयर्स ऑफ एज. तो अगर कोई भी गर्ल है जो कि 12 इयर्स से बिलो है तो उसके लिए भी जो उसका अगर कोई रेप कमिट करता है तो उसका भी जो पनिशमेंट है वो मिनिमम 20 इयर्स है, अलॉन्ग विच कैन बी एक्सटेंडेड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो कि रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ के लिए होगा. और उसके साथ साथ डेथ पेनल्टी भी है. और इसके साथ साथ जो कन्विक्ट है उसको फाइन पे करना होगा और जो ये फाइन है वो विक्टिम को जाएगा. एंड दैट फाइन शुड बी रीजनेबल इनफ which can help the victim for rehabilitation and can cover the medical expenses of the victim. अब सेक्शन 376 बी क्या बोलता है? सेक्शन 376 बी जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करता है ऑफ द हस्बैंड विद द वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन. यानी कि अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ है वो साथ नहीं रह रहे हैं, दे आर सेपरेटेड बाय एनी डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन या किसी और रीजन की वजह से, अगर उस टाइम पर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ रेप कमिट करता है तो जो इम्प्रिजनमेंट है वो मिनिमम 2 इयर्स से मैक्सिमम 7 इयर्स का है और उसके साथ साथ फाइन. अब आगे सेक्शन 376 सी क्या बोलता है? सेक्शन 376 सी जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी की बात करता है. ये बेसिकली रेप नहीं है. सेक्शन 376 सी जो है वो ये बताता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी मेल जो कि अथॉरिटी की पोजीशन में है या किसी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है उस वुमेन के साथ, या वो पब्लिक सर्वेंट है या फिर वो सुपरिंटेंडेंट है या मैनेजर है किसी जेल का या रिमांड होम का या कोई भी अदर प्लेस ऑफ कस्टडी का, तो वो अगर किसी विमेन के साथ या चाइल्ड के साथ रेप कमिट करता है उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, उस प्रीमाइसेस के अंदर या उस कैपेसिटी में, या फिर कोई पर्सन जो मैनेजमेंट या स्टाफ मेंबर है किसी हॉस्पिटल का, और वो ये सभी जो पर्सन है वो अपनी जो पोजीशन है अथॉरिटी की उसको अब्यूज करते हैं, जो फिड्यूशरी रिलेशनशिप है उसको इंड्यूस करके किसी विमेन को सिड्यूस करते हैं उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, विच विल नॉट बी काउंटेड एज रेप क्योंकि वहां पर कंसेंट है. तो उस सिचुएशन में जो पनिशमेंट है वो रेप नहीं है, बट स्टिल द पनिशमेंट इज minimum 5 years which can be extended up to 10 years, and the person will be liable for a fine also. Now moving forward toward section 376D जो कि गैंग रेप की बात करता है. सेक्शन 376D के अकॉर्डिंग अगर मोर देन वन पर्सन किसी विमेन को रेप करते हैं इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन या फिर एज अ ग्रुप अगर वो उसका रेप करते हैं, then they will be liable for a punishment which should be minimum 20 years, can be extended up to life imprisonment, along with यहाँ पर death penalty नहीं है, it is minimum 20 years which can be extended up to life imprisonment along with fine. तो आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 376 DA क्या बोलता है? DA ये बोलता है टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर
रेपिंग अ विमेन हु इज अंडर 16 इयर्स ऑफ एज। तो इसका जो पनिशमेंट है वो भी मिनिमम 20 इयर्स है, विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड अलॉन्ग विद फाइन। अब 376 डी बी जो है वो इट इज पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 12 इयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो मिनिमम 20 इयर्स है, एक्सटेंडेड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और इसके साथ साथ यहाँ पर डेथ पेनल्टी का भी जो है वो प्रावधान है, और फाइन के साथ साथ। नाउ एट लास्ट सेक्शन 376 ई जो है वो पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स है, यानी कि कोई एक पर्सन जो रेप के लिए एक बार पहले कन्विक्ट हो चुका है एंड वो दोबारा से रिपीटेडली वो क्राइम रेप कमिट करता है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो भी पनिशमेंट फॉर लाइफ है, और उसके साथ साथ डेथ पेनल्टी भी है। यहाँ पर कोई मिनिमम पनिशमेंट नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेट अवे पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। So now these were all the relevant sections related to rape and the punishment for rape. ये एक काफी ब्रॉडर टॉपिक है जिसके सर्टेन अमेंडमेंट्स हम और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं किसी और वीडियो में। तो दिस वाज ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगर आप कोई लॉ स्टूडेंट नहीं है तो भी आपको इन जो सेंसेशनल टॉपिक्स हैं लॉ के उनकी नॉलेज होना जरूरी है। So for further more videos, informative videos, keep watching the YouTube channel of Law Putra.